Namaste. Today we have Dr. Vimal Kumar Modi, who is a pioneer in the field of naturopathy. Having got himself trained in both allopathy and naturopathy, Dr. Modi exclusively practices naturopathy and is currently serving as a director of the very prestigious Arogya Mandir at Gorakhpur, Uttar Pradesh. Kavani, a program intended to introduce naturopathy to people through experts in the field. Today we have Dr. Vimal Modi and a famous naturopath's son, and he has inherited the legacy of naturopathy from Sri Vittal Das Modi, who happens to be a mentor for many of naturopaths in the country and abroad. So Dr. Vimal Modi, he has, you know, formally trained in modern medicine, MBBS. Then, of course, he has done MD also. Then, uh, to our fortunate, he has also got trained in naturopathy and then started practicing naturopathy. Here we have that kind of an expert who is well versed in the conventional medicine and also naturopathy, and let us know more from him what drawn him to nature cure. Sir, please tell us why you have chosen to come to nature cure. नहीं Why मैडम, मेरी you मेरी ट्रेनिंग, मेरी लर्निंग सब गोरखपुर में हुई। मैंने प्राइमरी स्कूल से एमबीबीएस तक गोरखपुर में ही पढ़ा, पोस्ट ग्रेजुएशन भी गोरखपुर में ही किया। मैं अपने घर में रहकर शिक्षा ले रहा था। मैंने ये देखा कि प्राय चिकित्सा में पिताजी जो चिकित्सा कर रहे हैं वो सिम्टम्स में नहीं जा रही है, जड़ से ठीक हो रहा है। और मैंने एलोपैथी में देखा कि जो भी रोग हैं उनको जीवन भर दवा खानी है, और दवा खाते खाते नए रोग में परिवर्तित होता है, फिर उसकी दवा चलती है। तो मैंने ये देखा कि एलोपैथी में कोई ठीक नहीं होता, सिम्टम्स को ठीक किया जाता है। और फिर मैंने एमबीबीएस, मेरे पिताजी ने मुझे अच्छा नेचुरोपैथ बनाने के लिए एमबीबीएस करवाया। फिर मेरा शौक पढ़ने का था, तो मैंने एमबीबीएस के बाद डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी किया, फिर एमडी इन रेडियोलॉजी किया। रेडियोलॉजी की चॉइस भी मेरी बड़ी विचित्र थी, क्योंकि रेडियोलॉजी में हर विषय के लोग वहाँ पे आते थे। सर्जरी के भी लोग आते थे, मेडिसिन के लोग भी आते थे, स्किन के भी लोग भी आते थे। और मुझे हर विभाग के बारे में जानने की इच्छा भी थी, और मैं उस विषय को लेने की वजह से जान भी पाया। और जानने की वजह से मैंने देखा कि हर जगह सर्जरी की तो बात निराली है, क्योंकि जो सर्जरी एलोपैथी का विषय है उसका कोई तोड़ नहीं है। टूट जाए तो बन जाती है, लेकिन यहाँ अगर हाथ टूट जाए तो भी नेचर क्योर ही उसको जोड़ती है, ये अपनी बात है। लेकिन सर्जरी का कोई जवाब नहीं है। स्किन में जीवन भर दवा खानी है, मेडिसिन में जीवन भर दवा खानी है। और मैंने लेगेसी पिताजी से ली, पिताजी से सीखी। फिर मैंने उचित समझा कि मुझे पारंपरिक पारिवारिक प्राय चिकित्सा जगत का कार्य है, करना चाहिए। और पिताजी रोज मुझे यही शिक्षा देते थे कि प्राय चिकित्सा से ही मेरा जीवन बचा है, इसलिए तुम प्राय चिकित्सा ही करो, प्राय चिकित्सा को आगे बढ़ाओ। और प्राय चिकित्सा ही बड़ी शुभ चिकित्सा है, अच्छी चिकित्सा है। Oh, that is very nice, sir. You are saying that you have taken MBBS study in order to become a better naturopath. That is the real new information we got. Similar situation has happened with the sons of Dr. B. Venkatrao also in Hyderabad. Dr. यस यस। Bapuji, Dr. Shivaji, they also got trained in MBBS, and then later they turned to nature cure and then learned naturopathy also. And then practicing naturopathy. That is the beauty of the whole thing. Sir, please tell us something more about your father, how he trained you into, because uh, Dr. Vittaldas Modi means for us, is a big iconic figure in the field of naturopathy. And Arogya Mandir Gorakhpur is a kind of Makkah.
anyone want to understand naturopathy from Hyderabad College, pass out, and the first thing that we would do was go to Gorakhpur, have a look at Arogya Mandir. It is that kind of a legacy you have created and your father has created. Tell us more about what is the success behind this Arogya Mandir. मेरे पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, देश के लिए लड़े। 1942-43 में 11 महीने गोरखपुर जेल में भी रहे। उनकी पारिवारिक भोजन की व्यवस्था कपड़े का व्यापार था। उन्होंने कपड़े का व्यापार पिताजी के साथ किया। वो बीमार पड़े, वो प्रोफेसर बनना चाहते थे। वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस में जाके उन्होंने हिंदी में प्रवेश लिया और बीए की शिक्षा लेना शुरू किया। बीए के अंतिम वर्ष में वो बीमार पड़ गए और परीक्षा नहीं दे पाए। उन्हें कब्ज हो गया, अग्निमंदता हो गई, नाड़ी विकार हो गया और फिर उन्होंने अपनी चिकित्सा एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदी से करवाई और ठीक नहीं हो पाए। फिर उनको पुणे की नवीन चिकित्सा विज्ञान पुस्तक मिली, जिसको पढ़कर उन्होंने अपनी चिकित्सा की और फिर उनका परिचय जानकी शरण वर्मा जी से हुआ, जिन्होंने रोगों की अचूक चिकित्सा लिखी है। उस पुस्तक से प्रभावित होकर वो डॉक्टर जानकी शरण वर्मा से मिले और जानकी शरण वर्मा ने उन्हें डॉक्टर बालेश्वर प्रसाद इलाहाबाद में थे, उनके पास चिकित्सालय में भेज दिया कि उनसे चिकित्सा कराओ। फिर वहाँ पर रहकर उन्होंने 38 दिन का उपवास किया, 20 दिन का रसाहार किया और वो पूरी तरह स्वस्थ हो गए। फिर बालेश्वर जी ने कहा कि तुम स्वस्थ हो गए हो, तुम्हें थोड़ा सा कर्ज अदा करना चाहिए प्राय चिकित्सा जगत का। तो उन्होंने प्राय चिकित्सा के लिए 9 महीने बालेश्वर जी के पास मुफ्त रहकर केवल भोजन प्राप्त करके उनका कार्य किया और उनकी मासिक पत्रिका जीवन सखा का संपादन किया। उसके बाद उनको समझ में आया कि मुझे प्राय चिकित्सा जगत में ही रहना चाहिए, प्राय चिकित्सा का प्रचार और प्रसार करना चाहिए। प्राय चिकित्सा ने मुझे स्वस्थ किया है, इसलिए मुझे प्राय चिकित्सा की जीवन पर्यंत सेवा करनी चाहिए। उन्होंने हिंदुस्तान में पूरे प्राय चिकित्सकों से मिले, साउथ में, दक्षिण भारत में गए। उन्होंने वेंकटराव से मुलाकात की, विजय लक्ष्मी जी से मुलाकात की, के लक्ष्मण शर्मा जी से मुलाकात की, दीनश्याम मेहता जी से उन्होंने 15 दिन बम्बई में रहकर मालिश सीखा और फिर महात्मा गांधी जी के भी संपर्क में आए। महात्मा गांधी जी ने भी उन्हें प्रेरित किया कि तुम प्राय चिकित्सालय खोलो और उन्होंने 1940 में किराए के भवन में गोरखपुर में प्राय चिकित्सालय खोला और 1962 में सन 60 में ये नवीन आरोग्य मंदिर का निर्माण करके बृहद 6 एकड़ में प्राय चिकित्सालय प्राकृतिक वातावरण में प्राय चिकित्सा से रोगियों की सेवा कर रहा हूँ। उन्होंने दर्जनों पुस्तकों को लिखा, कम से कम दर्जनों पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद किया और 1947 में उन्होंने आरोग्य मासिक पत्र निकाला कि प्राय चिकित्सा का प्रचार और प्रसार केवल चिकित्सा करके नहीं होगा, मासिक पत्र निकाले बिना जन जन तक प्राकृतिक चिकित्सा नहीं पहुंचाई जा सकती है। उन्होंने 1947 में आरोग्य मासिक पत्र निकाला और उसके ग्राहक बनाने के लिए रोगियों से को तो प्रेरित करते ही करते थे, वो हॉकर की तरह रेलवे स्टेशन में जाकर ट्रेन में बैठे हुए व्यक्तियों को आरोग्य बेचा करते थे। उसके बाद प्राय चिकित्सा करने वाले प्राय चिकित्सक की भी आवश्यकता हिंदुस्तान में पड़ने लगी। तो उन्होंने 1962 में गोरखपुर स्कूल ऑफ नेचुरोपैथी की स्थापना की। पहले 3 वर्ष का कोर्स किया, नहीं चल पाया, फिर 2 वर्ष का कोर्स किया, नहीं चला, फिर उन्होंने 1 वर्ष का व्यवहारिक प्राय चिकित्सा का स्थापित किया कि करस्पॉन्डेंस चिकित्सा से 1 वर्ष तक चिकित्सा दी जाए और 2 महीने 1 वर्ष तक शिक्षा दी जाए और 2 महीने के लिए उन्हें आरोग्य मंदिर में बुलाकर व्यवहारिक ज्ञान दिया जाए। तो हम अभी भी वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। 1 साल तक घर तक पढ़ाते हैं और 2 महीने जनवरी और फरवरी में चिकित्सालय में बुलाकर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं और वो 2 महीने उन्हें पूरे 2 महीने योगा सुबह शाम करना होता है। सुबह शाम प्राय चिकित्सा विधि से मरीजों की चिकित्सा करनी होती है।
थ्योरी क्लासेस भी चलते हैं, परीक्षाएं भी उसी समय होती हैं, तो उसको अपने स्वास्थ्य का ज्ञान हो जाता है, अपने परिवार को स्वस्थ करने की कला आ जाती है और अपने समाज को राय देने की कला विकसित हो जाती है। फिर धीरे धीरे वो पढ़कर अपना अनुभव विकसित करके प्राय चिकित्सक बन जाता है। मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान को प्राय चिकित्सा फैलाने के लिए उत्तर प्रदेश में जो मेरे पिताजी ने किया वो बहुत बड़ा काम किया। इस तरह उन्होंने प्राय चिकित्सा की, 11 महीने जेल में रहे और अपने जीवन भर खादी पहनते रहे। आपको आश्चर्य होगा कि उनके पास 2 खादी के कुर्ते थे, 2 धोती थी। सुबह धोकर एक रात को वो जिस पे सोते थे तख्ते पे उस पे बिछा देते थे, उसके ऊपर चद्दर बिछा देते थे और सोने से वो प्रेस हो जाता था और सुबह फिर वो कपड़ा वही धोती पहनकर, कुर्ता पहनकर चिकित्सालय में चले जाते थे। जब स्थिति बदली, धन आया, धोबी मिला, तो उनकी हमेशा शिकायत रहती थी कि धोबी वो कपड़ा धो नहीं पाता जो मैं धोता था, और वो शिकायत ही करते रहे। वो सफाई वो उनके हाथ में जो थी। फिर उन्होंने लेखन का भी काम किया, समाज के उद्धार के लिए हरिजनों का भी उत्थान किया, और एक और बड़ी विशेषता थी कि वो कम उम्र के बच्चों की शादी में नहीं जाते थे। उन्होंने उसका बहिष्कार किया और उनका कि नहीं, जब उम्र हो जाए तभी शादी होनी चाहिए। इस तरह उन्होंने प्राय चिकित्सा का भी काम किया, समाज का भी काम किया, देश को स्वतंत्र करने में भी योगदान दिया। इस तरह उनके व्यक्तित्व के साथ मुझे 20 वर्ष तक कार्य करने की सहयोग मिला। मैं 1980 में MBBS कर लिया और 80 से 2000 में उन्होंने शरीर छोड़ा। 20 वर्षों तक मैं उनसे प्राय चिकित्सा सीखता रहा, उनकी बातों को समझता रहा, उनके लेखन की कला सीखता रहा, और आज मैं उन्हीं के बनाए हुए सब चीज़ों को आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। That was really a great insight you have given us through the life of Sri Vittal Das Modi. And to tell you a story, you know, I come from a very remote district in Telangana, Nalgonda, and there used to be one patient with severe asthma. And one day at night at 11 o'clock or 11:30, his wife came to me running saying that he has got severe asthma. When I went there, that person, he was standing on a platform next to the well, and he was taking cold shower. Then I said, what are you doing? You are in already asthmatic condition, and then why are you taking cold water bath? Then he said, मैंने विठल दास मोदी का बुक पढ़ लिया, मुझे पता है क्या करना है, and please stay away from me, I know to take care of me. So this kind of students he had all over the world, and he made people completely self-sufficient and empowered. So much so that there was one more lady much later in my practice. She is from UP, but then married to somebody in some armed forces in Hyderabad. And she was telling that I am used to practice non-violent naturopathy of Dr. Vittal Das Modi. I will never take hot water treatments. You know, this kind of legacy your father has created. And thank you very much for bringing those things out in your talk when you're talking about his commitment not only to nature cure but also about other social ills and problems and how he responded to them. And I also heard that he was an avid practitioner of Vipassana. Would you like to say something on that also? नहीं, उन्होंने विपश्यना पहले कैंप 11 दिन का बनारस में किया। श्री सत्यनारायण गोयनका जी उस समय टीचर थे, उनके संपर्क में आए और उनसे बहुत प्रभावित हुए, और अंतिम 17 वर्ष उन्होंने प्राय चिकित्सा को छोड़कर विपश्यना को ही दिया, क्योंकि उन्होंने मुझे प्राय चिकित्सक के रूप में तैयार कर दिया था। उनका तुम प्राय चिकित्सा संभालो, मैं विपश्यना संभालता हूँ। और वो वर्ष में 4 कैंप लेने जाते थे। धीरे धीरे वो विपश्यना के सीनियर टीचर हुए, फिर सीनियर टीचर हुए। फिर श्री सत्यनारायण गोयनका जी ने उनको बहुत बार बुलाया कि विपश्यना कैंप में कैसा भोजन होना चाहिए।
उस भोजन का उन्होंने विकास किया कि इस तरह का भोजन होना चाहिए, अंकुरित अनाज देना चाहिए, सलाद देना चाहिए, फल देना चाहिए। और उन्होंने अंतिम 17 वर्ष विपश्यना को ही दिए और उन्होंने हम लोगों को भी प्रेरित किया। मैंने भी 10 दिन के 7 कैंप किए हुए हैं, मेरी पत्नी ने भी 2 कैंप किए हैं, मेरे परिवार के सारे सदस्यों ने कैंप किए हैं। और उनकी ही प्रेरणा से मेरे यहाँ हर महीने पहले संडे को बच्चों का 1 दिन का कैंप होता है और अंतिम संडे को बड़े लोगों का 1 दिन का कैंप होता है। Very true. I fully agree with you, sir. I have also done twice 10-day course, and I also feel that there is a close connection between naturopathy and Vipassana, as you have rightly mentioned, and also books written by your father. He has also mentioned that Vipassana is a very good method to cleanse the mind. As naturopathy, we believe that eliminative organs are to be kept active through naturopathy modalities. Similarly, Vipassana provides us to get rid of the memories which are troubling us, and Vipassana is a very good method of meditation where we can become more and more loving and caring and less about worried about our own issues. So I think yes, I fully agree with you, and you will be happy to know that NIN, we also every second Sunday a 1-day camp of Vipassana is conducted at NIN for the last 2 years. बहुत So अच्छी with this, बात है, बहुत अच्छी बात है। sir. And I also feel very happy that you are one of those recipients of Lifetime Achievement Award from National Institute of Naturopathy through the hands of our earlier minister, Sri Sripad Yesho Naik. You were awarded in Goa, and you were also a board member for NIN for a long time. And we always look forward to work with you and then take your help in designing various things in the field of naturopathy for the benefit of larger public. Thank you once again for giving us your valuable time and to share your views with regard to nature cure and the legacy that you have inherited from your father. Thank you very much. थैंक यू मैडम, थैंक यू। Yeah, thank you.